Hello. So we are going to continue with our classification of the sympathomimetic, that is on the basis of therapeutic uses. Therapeutic uses. Okay. So starting with therapeutic uses, we first have pressure agents. So in pressure agents we have noradrenaline or norepinephrine. Noradrenaline is also known as norepinephrine. Okay, then we have ephedrine. Okay, nextly we have dopamine, dopamine. Then we have phenylephrine. Okay, after phenylephrine we have methoxamine, and finally we have mephentermine. Okay, so this is all about the pressure agents. Now moving on towards the next, we have bronchodilators. Okay, bronchodilators. So in this we have salbutamol, terbutaline, formoterol, bambuterol, isoprenaline, okay, so salbutamol, okay, and finally we have salmeterol. Now moving on towards the next, we have uterine relaxants. Okay, uterine relaxants. So for this we have a mnemonic RIST, that is RIST, RIST. Rotadine, we have Ritodrin, Isosuprin. Then we have salbutamol, and finally terbutaline. Okay, so these are the uterine relaxants. Now moving on towards the next, we will have nasal decongestants. Okay, so in nasal decongestants we have metazoline group. Okay, basically what we have, metazoline group. So xylometazoline, oxymetazoline, then we have nefazoline, then we have phenylephrine, then we have phenyl phenyl propra
nolamine, and finally we have pseudoephedrine. ओके, pseudoephedrine. सो फर्स्ट टॉक अबाउट द प्रेशर एजेंट्स. तो इसमें क्या है हमारे पास, नॉर एड्रीनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन. सो एपिनेफ्रिन का ई आया तो एफेड्रिन. एफेड्रिन इज आवर नेक्स्ट ड्रग. फिर क्या है, डोपामिन. ठीक है, डोपामिन. उसके बाद क्या आ जाएंगे, दो अमीन है. ठीक है, मिथॉक्सामीन और मेफेंटामीन. देन वी हैव फिनाइल एफ्रिन. ठीक है, एफेड्रिन से फिनाइल एफ्रिन. ठीक है, सो याद करने की टेक्निक है. उसके बाद साल्ब्यूटामॉल आ रहा है, टर्ब्यूटालिन और आइसोप्रेनालिन. ये तो एक हो गए. ठीक है, फिर साल्ब्यूटामॉल से रिलेटेड फॉर्मेटेरॉल, बेम्ब्यूटेरॉल. ठीक है, एंड फाइनली साल्मेटेरॉल. ठीक है, एंड देन वी हैव रिटोड्रीन. ठीक है, इसका निमोनिक क्या है, RIST, दैट इज रिटोड्रीन, आइसोप्रेनालिन और सॉरी आइसोसुप्रिन, salbutamol, terbutaline, and finally we have in nasal decongestants we have metazoline group. Okay, xylometazoline, oxymetazoline, nefazoline, and then we have two phenyl, that is phenylephrine and phenylpropranololamine, and finally we have pseudoephedrine. Okay, now moving on further we have cardiac stimulants. ठीक है, और क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, cardiac stimulants. ओके, सो कार्डियक स्टिमुलेंट्स के अंदर हमारे पास क्या है कि ये निमोनिक है. ठीक है, इसमें भी कार्डियक. सो DIA इज द निमोनिक. वी हैव व्हाट, DIA, दैट इज एड्रेनालिन, आइसोसुप्रिन, sorry, this is not isosuprin, this is isoprenaline. And finally we have dobutamine. What? Dobutamine. ठीक है, so DIA, that is dobutamine, isoprenaline and adrenaline. Now moving on towards the next, we have CNS stimulants. ठीक है, CNS stimulants. So in CNS stimulants we have a mnemonic next, that is DAMM. DAMM. ठीक है, so इसमें A है सबसे पहले एम्फीटामीन. What? एम्फीटामीन. तो D जो है वो क्या हो जाएगा, डेक्स. ठीक है, डेक्स एम्फीटामीन. ठीक है, फिर मैथ एम्फीटामीन. methamphetamine. And finally we have methylphenidate. What? Methylphenidate. Okay, so what all we have? We have a mnemonic DAM, that is dexamphetamine. सबसे पहले क्या है, एम्फीटामीन. एम्फीटामीन के बाद डेक्सएम्फीटामीन, मेथएम्फीटामीन, एंड फाइनली वी हैव मिथाइलफेनिडेट. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन वी हैव एनोरेक्टिक्स. ठीक है, सो इसके अंदर भी कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले एम्फीटामीन, देन फेनफ्लूरामीन, then we have dex, fenfluramine, and finally we have sibutramine. Okay, so this is the
classification of sympathomimetic on the basis of therapeutic use. Okay, pressure agents, that is noradrenaline, ephedrine, dopamine, phenylephrine, methoxamine, and finally mephentermine. Now nextly we have bronchodilator. ठीक है, डायलेटर, रिलैक्सेंट्स, याद करने की टेक्निक है, डायलेट कर रहा है ब्रोंकियोल्स को, सॉरी ब्रोंकियोल्स को, जो मतलब लार्जर एयरवेज हैं उसको बेसिकली यूट्रस पे क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था. नेजल डीकंजेशन में हेल्प करता है बाय वेजोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट. फिर कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट रहता है ऑन वर्किंग ऑन द बीटा 1 रिसेप्टर. सीएनएस स्टिमुलेटिंग इफेक्ट रहता है एम्फेटामिन और इन सब का. एंड फाइनली वी हैव एनोरेक्सिएंट्स, एनोरेक्टिक्स. ओके, now we will discuss each drug in detail. Okay, so now starting with the first, that is directly acting sympathomimetic. Okay, directly acting sympathomimetic. We first have adrenaline. Okay, what we have? Adrenaline. Okay, so adrenaline basically affects the alpha 1, alpha 2, beta 1 and beta 2. It also affects the beta 3, but weak beta 3 activity. What? Weak beta 3 activity. Weak beta 3 effect. तो ये सारे रिसेप्टर पे एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो एड्रेनालिन है या एपिनेफ्रिन है वो सबको अफेक्ट करता है. दैट इज अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बट वीक बीटा 3 इफेक्ट रहता है इसका. ठीक है, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन. एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन क्या कर रहा है, सब पे इफेक्ट कर रहा है, लेकिन कैसा इफेक्ट है इसका? माइल्ड इफेक्ट या वीक इफेक्ट है किस पे? बीटा 3 पे. ठीक है, अब ये क्या है? कैटेकोलामीन. मैंने पहले ही बताया था कि कैटेकॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है जब हमने डिवीजन किया था. ठीक है, सो दिस इज कैटेकोलामीन, कैटेकोलामीन. ठीक है, देन इट इज नॉन सिलेक्टिव, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सारे रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा है. ठीक है, नॉन सिलेक्टिव. डायरेक्टली एक्टिंग क्यों है? क्योंकि सिर्फ रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है. नॉन सिलेक्टिव. ठीक है, इसके बाद पहली बात तो क्या है, डायरेक्टली एक्टिंग क्यों है? क्योंकि सारे रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा है. ठीक है, नॉन सिलेक्टिव है. ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग है. ये भी पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग. ठीक है, तो क्या क्या हो गया? कैटेकॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर, नॉन सिलेक्टिव है, डायरेक्टली एक्टिंग है. ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्पेशल इफेक्ट्स की. तो सबसे पहले बात हम लोग किसके बारे में करते थे? हर बार हार्ट के बारे में करते थे. सो हार्ट पे क्या करता है ये? हार्ट पे इफेक्ट कैसे करता है? कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट रहता है. व्हाई? बिकॉज इट अफेक्ट्स द बीटा 1. सो बीटा 1 को जब स्टिमुलेट करता है, सो देयर विल बी इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड कंडक्शन, increased force of contraction, increased cardiac output. ठीक है, then there will be increased automaticity. ठीक है, तो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, कंडक्शन को इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ बीटा 1 स्टिमुलेटरी इफेक्ट. यहाँ पे किसको इफेक्ट कर रहा है? बीटा 1 को. सो बीटा 1 का बेसिक इफेक्ट किस पे होता है? हार्ट पे. सो कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है. फिर हार्ट में जैसे सीवीएस के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो सीवीएस में एक तो हार्ट आ जाता है, फिर क्या आ जाती है हमारी? ब्लड वेसल्स. अब ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं. सो ब्लड वेसल्स पे क्या होता है कि जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसमें अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है. कौन सा? अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है. सो ये अल्फा 1 रिसेप्टर को जब स्टिमुलेट, देयर विल बी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट. व्हाट? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है. सो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन जब होता है तो और क्या होता है? एक तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की
में जो अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है उसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, और जो पेरिफेरल हमारी वेसल्स रहती हैं, पेरिफेरल वेसल्स, जो पेरिफेरल वेसल्स रहती हैं हमारी कहां कहां की, एक तो रीनल, मीजेंट्रिक, स्प्लैंक्निक, ओके कौन कौन सी हो गई, रीनल, स्प्लैंक्निक, मीजेंट्रिक एंड फाइनली वी हैव पल्मोनरी, व्हाट, पल्मोनरी। सो इन पे भी ये क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन अफेक्ट करता है, ठीक है, स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन पे। उसके बाद जो पेरिफेरल वेसल्स हैं जैसे कि रीनल, मीजेंट्रिक, स्प्लैंक्निक एंड पल्मोनरी, सो इन पे भी ये क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स द बीटा 2 इफेक्ट। सो बीटा 2 इफेक्ट क्या होता है, वेजो डायलेशन कराता है ये, किनमें, एक तो कोरोनरी आर्टरीज में, और कोरोनरी वेसल्स कह लें अगर सही कहें तो, कोरोनरी वेसल्स और स्केलेटल मसल की, स्केलेटल कोरोनरी वेसल्स और स्केलेटल मसल्स में क्या कराएगा, ये वेजो डायलेशन कराएगा। स्केलेटल मसल्स की जो वेसल्स रहती हैं उसमें वेजो डायलेशन कराएगा बाय द बीटा 2 इफेक्ट। हमने पहले भी इसका डिवीजन पढ़ा है, ठीक है, कि हार्ट में बीटा 2 रहता है, ठीक है, स्केलेटल मसल में बीटा 2 रहता है, बाकी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में अल्फा रहता है, इसीलिए वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन अफेक्ट रहता है। अब जो मेन एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, ठीक है, वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। तो इसमें क्या रहता है कि जब हम लोग स्टार्टिंग में एड्रेनालिन एडमिनिस्टर करते हैं, सो देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, बीपी में क्या होता है, इंक्रीमेंट दिखता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द अल्फा 1 इफेक्ट देयर विल बी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, लेकिन ये लेस टाइम के लिए रहता है। लेकिन इसके बाद जब बीटा 2 का रोल आता है, ठीक है, जब बीटा 2 का रोल आता है, ठीक है, तो ये जो बीपी इंक्रीज हो रहा है तो ये अल्फा 1 और बीटा 1 की वजह से हो रहा है, ठीक है। बीटा 1 का इफेक्ट, ये जो बीपी का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, एड्रेनालिन को जब आईवी एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या करता है, देयर विल बी इंक्रीज इन बीपी, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि अल्फा 1 वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है अल्फा 1 की वजह से, एंड बीटा 1 की वजह से क्या हो रहा है, देयर इज कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, कार्डियक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो बीटा 2 की वजह से क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स रहती हैं उसमें क्या होगा, वेजो डायलेशन होता है। ये जो बीटा 2 रिसेप्टर रहता है ये हमारा सेंसिटिव रहता है काफी, ठीक है, सेंसिटिव रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, देयर विल बी वेजो डायलेशन। तो अगर ग्राफ प्लॉट करें हम लोग इस चीज के लिए, तो पहले क्या हो रहा है, देयर विल बी इंक्रीज इन बीपी, एंड देन जब वेजो डायलेशन हो रहा है देन देयर विल बी डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, बीपी, ठीक है। सो पहले क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड देन देयर विल बी then there will be decrease in blood pressure. Why? Because of vasodilation. लेकिन क्या होता है कि जब कोई पेशेंट है, if patient is on अल्फा ब्लॉकर, ठीक है, अल्फा ब्लॉकर है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि अगर हमने उसके साथ एड्रेनालिन एडमिनिस्टर किया है तो उस केस में क्या होगा कि अल्फा इफेक्ट क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। सो देन देयर विल बी नो इंक्रीज इन बीपी और देयर विल बी नो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। सो ये जो इफेक्ट है इसका, ये क्या होगा यहां पे कि ये जो ब्लड प्रेशर है वो काफी ज्यादा डिक्रीज होगा, काफी ज्यादा डिक्रीज होगा, और देयर विल बी exaggerated डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। सो इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, ठीक है। सो इसलिए क्या करते हैं
कि जो अल्फा ब्लॉकर है वो एड्रीनलिन के साथ मतलब कोई अगर पेशेंट एड्रीनलिन के डोज पे है तो उसमें अल्फा ब्लॉकर क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। और ये जो इफेक्ट हो रहा है वेजोमोटर रिवर्सल का हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा इफेक्ट आ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अल्फा ब्लॉकर आपने दे दिया है। सो एड्रीनलिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विथ द अल्फा ब्लॉकर, पेशेंट गोइंग ऑन थेरेपी ऑफ अल्फा ब्लॉकर। ओके, सो क्यों? क्योंकि सिर्फ वेजो डायलेशन अफेक्ट आ पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन फर्दर वी हैव स्मूथ मसल, दैट इज स्मूथ मसल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, जीआईटी की बात कर लेते हैं। सो इन जीआईटी देयर विल बी डिक्रीज्ड टोन, डिक्रीज्ड पेरिस्टाल्सिस, डिक्रीज्ड पेरिस्टाल्सिस, इंक्रीज्ड एनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सेम इफेक्ट होगा जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। सो इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली कॉन्स्टिपेशन होगा। व्हाट? देयर विल बी कॉन्स्टिपेशन। नाउ मूविंग ऑन फर्दर वी हैव कॉन्स्टिपेशन। नाउ मूविंग ऑन फर्दर वी हैव यूरिनरी ब्लैडर। सो यूरिनरी ब्लैडर में भी क्या होगा, जो डेट्रूसर मसल की टोन है उसमें रिलैक्सेशन होगा। डेट्रूसर मसल टोन जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड इंक्रीज्ड टोन ऑफ स्फिंक्टर, स्फिंक्टर की जो टोन है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो देयर विल बी यूरिनरी रिटेंशन। व्हाट? यूरिनरी रिटेंशन। ओके, सो ये तो बात हो गई यूरिनरी ब्लैडर की। अब बात करते हैं फाइनली किसके बारे में, ब्रोंकाई के बारे में और रेस्पिरेटरी के बारे में, ठीक है, आरएस के बारे में। तो आरएस के बारे में बात करेंगे। ओके, सो देयर विल बी ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंको डायलेशन, डिक्रीज्ड सिक्रीशन, ठीक है, डिक्रीज्ड सिक्रीशन, डिक्रीज्ड सिक्रीशन। अब ये सिक्रीशन का ये जो डिक्रीज है तो ये इनहिबिट करेगा किसको, मास्ट सेल्स को, ठीक है, इनहिबिट करेगा किसको, मास्ट सेल्स को। मास्ट सेल्स क्या करती है हमारी, हिस्टामिन सीरोटोनिन को रिलीज करेंगे तो उसकी वजह से देयर विल बी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। सो देयर विल बी डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सो देयर विल बी डिक्रीज्ड सिक्रीशन एंड म्यूकोजल कंजेशन को भी रिलीफ करेगा, ठीक है, म्यूकोजल कंजेशन, डिक्रीज इन सिक्रीशन एंड म्यूकोजल कंजेशन। किस इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट अफेक्टिंग द अल्फा 1 रिसेप्टर, ठीक है। तो ये हो गया आरएस पे इफेक्ट एड्रेनालिन का, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन फर्दर वी हैव इफेक्ट ऑन आई, ठीक है। और ये जो ब्रोंकोडायलेशन का इफेक्ट रहता है ये कैसा रहता है, काफी पावरफुल रहता है, ठीक है। सो पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर रहता है, एड्रेनालिन जो हमारा रहता है वो पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर रहता है। एंड फाइनली शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है इसका। कैसा रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन फर्दर, थर्ड इफेक्ट अभी हार्ट पे देखा, फिर स्मूथ मसल पे देखा। नाउ मूविंग ऑन फर्दर ऑन द आई, ठीक है। आई पे जब मूव करते हैं तो ये क्या रहता है, इसका पुअर पेनिट्रेंस रहता है, कॉर्निया को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। हम लोगों ने पहले भी एग्जांपल देखा है डीपी वेफरिन का, ठीक है। सो पुअर पेनिट्रेंस रहता है। टॉपिकली एडमिनिस्टर कर सकते हैं इसको, ठीक है, टॉपिकली एडमिनिस्टर्ड एज अ प्रोड्रग, एडमिनिस्टर्ड एज प्रोड्रग, प्रोड्रग के फॉर्म में देंगे ताकि फिर ये जब जाके एड्रेनालिन में कन्वर्ट हो जाए कॉर्निया को पास करके, ठीक है। सो एड्रेनालिन के फॉर्म में नहीं देंगे लेकिन उसको प्रोड्रग के फॉर्म में देंगे, ठीक है। नेक्स्टली आई के बाद अगर बात करें तो फोर्थ ऑन द सीएनएस, ठीक है। तो सीएनएस पे कैसा इफेक्ट रहता है, थेरापोइटिक डोज की अगर बात करें तो उतना कोई खास इफेक्ट नहीं रहता। वाई? बिकॉज इट डज नॉट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर,
ठीक है, मिनिमल इफेक्ट्स, सो मिनिमल इफेक्ट्स ऑन द थेराप्यूटिक डोज। और अगर हाई डोज की बात करें तो देयर विल बी हाई डोज में क्या होगा, हेडेक होगा, रेस्टलेसनेस होगी, रेस्टलेसनेस, ठीक है, फिर ट्रेमर्स होंगे, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट ऑन द स्केलेटल मसल की वजह से ट्रेमर्स होंगे, ठीक है। सो ये सारे इफेक्ट होंगे किसमें, सीएनएस की वजह से। एंड फाइनली ऑन द स्केलेटल मसल की अगर बात करते हैं, स्केलेटल मसल्स की अगर बात करते हैं तो स्केलेटल मसल में क्या होता है, देयर इज डिक्रीज्ड पोटेशियम लेवल। व्हाई, बिकॉज इट इंक्रीजेस द intake of potassium into the cell, intake of potassium into inside cell, ठीक है, inside cell। दूसरी बात ये न्यूरोट्रांसमीटर जो एनएम रिसेप्टर का ट्रांसमिशन होता है उसको भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। देयर विल बी इंक्रीज इन एनएम ट्रांसमिशन, ठीक है। सो ये तो हो गया किस पे, स्केलेटल मसल पे इफेक्ट। नाउ मूविंग ऑन फर्दर वी हैव मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की बात करते हैं। फाइनली मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि देयर विल बी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन नहीं बनेगा। सो देयर विल बी इंक्रीज्ड लैक्टिक एसिड, क्यों, क्योंकि मसल्स काम ज्यादा करेंगी, ठीक है, लैक्टिक एसिड, देयर विल बी इंक्रीज्ड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद देयर विल बी डिक्रीज्ड इन इंसुलिन सिक्रीशन बिकॉज ऑफ अल्फा 2 इफेक्ट। अल्फा 2 इफेक्ट की वजह से क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज्ड इंसुलिन सिक्रीशन। तो ये सारे क्या हो गए, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हो गए किसके, एड्रेनालिन के, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन फर्दर वी हैव द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एड्रेनालिन, ठीक है। ये तो अभी हम लोगों ने थेराप्यूटिक यूजेस पढ़ा, अब फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग ओरली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। व्हाई इट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड ओरली, बिकॉज इट गेट्स इनटू द जीआईटी एंड लिवर, देन इट विल बी डिग्रेडेड बाय कॉम्ट एंड माउ रैपिडली, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, इसको ओरली एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। व्हाई, बिकॉज इट इज डिग्रेडेड इन लिवर एंड जीआईटी, इट इज डिग्रेडेड इन लिवर एंड जीआईटी, ठीक है। सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। लेकिन जब एनाफाइलेक्सिस की कंडीशन आती है, व्हेन देयर विल बी एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है, सो सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एनाफाइलेक्टिक जो शॉक की कंडीशन रहती है, दैट इज क्या रहते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक कैसी रहती है, इमरजेंसी सिचुएशन रहती है। सो उसमें हमको बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट चाहिए, उसकी वजह से हम लोग इसमें कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, IM एडमिनिस्टर करते हैं 1:1000, ठीक है, 1:1000 एडमिनिस्टर करते हैं एड्रेनालिन को। इस रेशियो में एडमिनिस्टर करते हैं 0.3 to 0.5 mg ऑफ एड्रेनालिन इज एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, 0.3 to 0.5 ml, सॉरी 0.3 to 0.5 ml, और ये किस में रहता है, mg पर ml, ठीक है, 1:1000 mg पर ml एडमिनिस्ट्रेशन रहता है एनाफाइलेक्टिक शॉक में। लेकिन जब कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन आती है, व्हेन देयर विल बी कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, तो हमको सिर्फ हार्ट पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट चाहिए, तो उस टाइम पे ये लाइफ सेविंग ड्रग रहती है, ठीक है। इट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट, इट इज इंक्लूडेड इन बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट। सो उस टाइम क्या करते हैं हम लोग, इसको IV एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, सॉरी एब्जॉर्प्शन की पहले बात कर लेते हैं। ये तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया हमारा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, सो इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द, इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। एलिमिनेशन की बात करते हैं, ठीक है,
एलिमिनेशन की बात या पहले उसकी बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की जब बात करते हैं, सो इट इज मेटाबोलाइज्ड इन लिवर बाय माओ एंड कॉम्ट कैटेकॉल ऑर्थोमेथ ट्रांसफरेज। ठीक है, सो ये क्या हो गया, माओ और कॉम्ट के थ्रू। एंड फाइनली वी हैव एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन कहां से होता है, यूरिन में हो जाएगा एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो ये क्या हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया एड्रेनालिन का। Now moving on further, we have एडवर्स इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन। ठीक है, सो एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा, हार्ट में एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, जो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन था उसी का एक्सटेंशन होगा, दैट इज रेस्टलेसनेस। हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, रेस्टलेसनेस, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया हार्ट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है, तो अगर एडवर्स इफेक्ट या हाई डोज में हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी टैकीकार्डिया। ठीक है, फिर क्या होंगे, ट्रेमर्स होंगे। ठीक है, पाल्पिटेशंस होंगे हार्ट में, पाल्पिटेशंस। देन देयर विल बी हाइपरटेंशन। ठीक है, क्या होगा, और हाइपर टेंशन होगा। ओके, और अगर आगे बात करते हैं तो जो सीरियस साइड इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, सीरियस साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो सीरियस साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, एक तो सेरेब्रल हीमोरेज, सेरेब्रल और देयर विल बी कार्डियक कार्डियक एरिथमिया। देयर विल बी कार्डियक एरिथमिया। तो ये सीरियस साइड इफेक्ट्स होंगे। फिर अगर बात करें कि इसकी मतलब अगर हाई डोज में हम लोग कभी एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं एड्रेनालिन का, तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी पल्मोनरी इडेमा, देयर विल बी पल्मोनरी इडेमा। वाई, बिकॉज जो सिस्टमिक ब्लड है, ठीक है, जो सिस्टमिक ब्लड है हमारा, उसको ये ट्रांसफर करेगा किधर, ट्रांसफर कर देगा पल्मोनरी कैपिलरीज में। जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी पल्मोनरी इडेमा। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। ओके, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की जब बात करते हैं तो इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हाइपरटेंसिव्स। पहले से ही हाइपरटेंशन है सामने वाले को, आपने एड्रेनालिन एडमिनिस्टर कर दिया, देयर विल बी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट एंड इट विल लीड टू सीवियर साइड इफेक्ट्स। ठीक है, हाइपरटेंशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, हाइपरटेंसिव्स में। ठीक है, एंजाइना में, एंजाइना में, ठीक है, एंजाइना में ये क्या है अपना, एंजाइना में है। ठीक है, इसके बाद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, कि हार्ट पहले से ही इतना ज्यादा इफेक्ट, मतलब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कह लें अगर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो क्या होता है इसमें, पहले से ही हार्ट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट, आपने एड्रेनालिन उसको एडमिनिस्टर कर दिया, देन देयर विल बी सीवियर लॉस। दूसरी बात, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विथ पेशेंट ऑनगोइंग बीटा ब्लॉकर्स। अगर कोई पेशेंट बीटा ब्लॉकर पे और आपने उसको एड्रेनालिन दे दिया, सो देयर विल बी सीवियर अल्फा, सॉरी सीवियर अनअपोज्ड अल्फा इफेक्ट। ठीक है, सीवियर अनअपोज्ड, अल्फा अल्फा receptor affects, that is
hypertensive, hypertensive crisis and cerebral edema, cerebral edema. So this is all about adrenaline. Now moving on towards the therapeutic uses. Okay, थेराप्यूटिक यूजेस की बात कर लेते हैं. फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिस्कस किया था हमने, ठीक है, सबसे पहले. फिर अब बात करते हैं थेराप्यूटिक यूजेस की. Okay, so now moving on towards the therapeutic uses, we firstly have it is used in anaphylactic shock. Anaphylactic shock, ठीक है. सो एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या होता है, देयर इज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है एक तो, ठीक है, और शॉक की वजह से क्या होता है, देयर इज डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर. सो इन दोनों को मैनेज करने के लिए एड्रेनालिन जो रहता है इट इज ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है. एड्रेनालिन इज ड्रग ऑफ चॉइस. 3 स्टार पॉइंट है. एड्रेनालिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक, दैट इज 1:1000 रेशियो में एडमिनिस्टर करते हैं. 0.3 to 0.5 ml एड्रेनालिन को एडमिनिस्टर करते हैं. ये क्या है, mg/ml रेशियो है, ठीक है. सो ये क्या करेगा, एनाफाइलेक्सिस में हेल्प करेगा हम लोगों को, ठीक है. इट इज ड्रग ऑफ चॉइस. नेक्स्ट अगर बात किया जाए, सो इट कैन बी यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है. पहली बात तो ये है कि अगर इतने के बाद रिलीफ नहीं मिलता है पेशेंट को एनाफाइलेक्सिस से, देन आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स इस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के हम लोग कितना कर देंगे, 1:10,000 में, ठीक है. 1:10,000 एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे. और ये कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, IM एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, ठीक है. और ये कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, IV एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, ठीक है. IM एडमिनिस्ट्रेशन एंड IV एडमिनिस्ट्रेशन. नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रोंकियल एस्मा. सो ब्रोंकियल एस्मा में सब क्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं 1:1000 रेशियो में. कितने में, 1:1000 रेशियो में एड्रेनालिन को हम लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं. तो उसकी वजह से क्या क्या होता है, हमने पहले भी ये चीज डिस्कस करी है, दैट इट इज पोटेंट ब्रोंकोडाइलेटर, पोटेंट ब्रोंकोडाइलेटर होता है एड्रेनालिन. दूसरी बात, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. फिर ये क्या करता है, इनहिबिट करता है मास्ट सेल्स को, ठीक है. पहले भी हमने डिस्कस किया, इनहिबिट करेगा मास्ट सेल्स को, जिसकी वजह से देयर विल बी डिक्रीज्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ठीक है, डिक्रीज्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स. and finally there will be अल्फा इफेक्ट की वजह से क्या होता है, अल्फा 1 इफेक्ट की वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से देयर विल बी रिलीफ फ्रॉम म्यूकोजल इडेमा एंड कंजेशन, म्यूकोजल इडेमा एंड कंजेशन, ठीक है. सो ये हो गया किसमें, ब्रोंकियल एस्मा में. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स थर्ड, दैट इज कार्डियक resuscitation. रिससिटेशन में क्या होता है, 1:1000 एड्रेनालिन देते हैं, ठीक है, सॉरी 1:10,000 एड्रेनालिन एडमिनिस्टर करते हैं. IV सीधे किस में देंगे, सेंट्रल वेन में देंगे, ठीक है, सेंट्रल वेन में देंगे. सेंट्रल वेन में कौन सी, जुगुलर वेन में एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है.
अगर इफेक्ट नहीं होता है तो फिर किस में देंगे, इसके बाद देते हैं हम लोग इंट्राऑशियस, इंट्राऑशियस। तो लॉन्ग बोन्स जो रहती हैं हमारी, जैसे कि टीबिया हो गया, तो टीबिया के अंदर देंगे। एंड फाइनली देयर विल बी एंडोट्रेकियल एडमिनिस्ट्रेशन, एंडोट्रेकियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो ये हो गया आईवी। एड्रेनालिन देंगे हम लोग 1:10,000। ठीक है, कार्डियक रिससिटेशन में। और ये इसी को क्या कहते हैं हम लोग, BLS और ALS, दैट इज एडवांस लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट। और ये जो कार्डियक अरेस्ट रहता है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक रिससिटेशन, तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, देयर विल बी डिक्रीज्ड हार्ट रेट, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, डिक्रीज्ड पल्स प्रेशर। सो इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, CPR देंगे। ठीक है, CPR देंगे, जो कि 100 टाइम्स देते हैं एवरी मिनट। ठीक है, एवरी मिनट 100 टाइम्स देंगे। ठीक है, सो क्या करेंगे, CPR देंगे 100 टाइम्स एवरी मिनट। ठीक है, और ये किसके ट्रीटमेंट में ये सब यूज हो रहा है, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू ड्राउनिंग। ठीक है, ड्राउनिंग की केस में, या तो पेशेंट मतलब या जो मतलब पेशेंट है वो डूब गया था, या इलेक्ट्रोशन। ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन। ठीक है, या शॉक लगने की वजह से कार्डियक अरेस्ट आ गया उसको। सो इन सारे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, एड्रेनालिन को एडमिनिस्टर करेंगे 1:10,000। ठीक है, 0.1 mg/ml। ये थेराप्यूटिक यूजेस ये भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लोकल एनेस्थीसिया के साथ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया के साथ एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसका, एड्रेनालिन का। कैसे देते हैं, 1:1 लाख अलंग विथ लिग्नोकेन। सो ये क्या करता है कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, किसके वजह से, अल्फा 1 की वजह से। देयर विल बी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ड्यू टू अल्फा 1। सो इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। स्लो रिलीज होगा क्योंकि ड्रग। ठीक है, अब अगर बात करें नेक्स्ट, तो एपिस्टेक्सिस में यूज होगा ये। एपिस्टेक्सिस में भी कैसे होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी हीमोस्टेटिक इफेक्ट। और ये किसकी वजह से है, अल्फा 1 की वजह से है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट क्यों आएगा, मतलब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट क्यों आएगा, क्योंकि अल्फा 1 स्टिमुलेट होगा तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। सो उसकी वजह से क्या होगा, हीमोस्टेटिक इफेक्ट होगा। ओके, सो इट इज used in tooth extraction, epistaxis and capillary oozing। ठीक है, epistaxis and capillary oozing के टाइम पे। ठीक है, capillary oozing। ठीक है, कैपिलरी यूजिंग के टाइम पे यूज्ड इन टूथ एक्सट्रैक्शन जब होता है तो यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, या नोज, थ्रोट और लैरिंग्स में कुछ अगर करना है, जैसे नोज हो गया हमारा, थ्रोट हो गया, एंड लैरिंग्स में अगर कैपिलरी यूजिंग हो रही है। ठीक है, तो उसमें भी ये क्या करेगा, नोज के थ्रू मतलब एपिस्टेक्सिस हो रहा है। ठीक है, तो उसमें भी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा हमको बेसिकली। सो दिस इज नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया एपिस्टेक्सिस एंड कैपिलरी यूजिंग। एंड फाइनली ऑन द आई। ठीक है, आई की बात करते हैं, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है आई के बारे में। ठीक है, आई की बात करते हैं तो आई में क्या करता है, जो एड्रेनालिन रहता है, इट कैन नॉट क्रॉस द कॉर्निया।
ठीक है। सो इसको हम लोग टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, टॉपिकली एडमिनिस्टर्ड एज प्रो ड्रग। मैंने बताया था पहले भी, जो डिपीवेफ्रिन होता है, डिपीवेफ्रिन, ये क्या करता है, क्रॉस करता है कॉर्निया को, क्रॉस करेगा, ठीक है। और कॉर्निया को क्रॉस करने के बाद ये ईस्टरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, ईस्टरेज एंजाइम के प्रेजेंस में कॉर्निया को क्रॉस करेगा एंड फाइनली अंदर जाके एड्रीनालिन में कन्वर्ट होगा। एड्रीनालिन के दो फंक्शन होंगे, एक तो स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, एंड देन इसका डायरेक्ट जो होगा डिक्रीज्ड यूवोस्क्लेरल आउटफ्लो। पहली बात तो इट विल कॉज इंक्रीज्ड यूवोस्क्लेरल आउटफ्लो, uvuloscleral outflow, increased uvuloscleral outflow, ठीक है। and then there will be stimulation of alpha 1 and alpha 2, it will cause decreased secretion, decreased formation of aqueous humor, decreased formation of aqueous humor, जिसकी वजह से, इन दोनों की वजह से क्या होगा, it is used in glaucoma, ठीक है। आई में किस में यूज हो रहा है, ये ग्लाकोमा में, ठीक है, ग्लाकोमा में यूज हो रहा है। सो इट विल डिक्रीज द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है, इट विल डिक्रीज द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर।